Om Shri Sai Ram. My most humble salutations at the divine lotus feet of our beloved Lord, Bhagwan Shri Satya Sai Baba, and a very loving Sai to all of you. Thank you very much for giving me another chance to share my experiences with you. Today, I am going to share a few experiences where I felt when we have a query, कोई भी जिज्ञासा मन में होती है तो inwardly also Swami answers that in a very beautiful manner, and you know, and you are satisfied fully. ऐसे कई दो तीन अनुभव हैं which I would like to share with you. Many years back, I had gone to visit some relatives with my husband. और उनके साथ जिनके पास मैं गई थी मेरा बहुत प्यार था. I had stood by them always जब भी कोई जरूरत थी, and we were very close. उस दिन somehow कुछ discussion ऐसा हुआ that during the discussion I was blamed and criticized for something which I had not done, which I was not guilty of at all. I was very badly hurt that day. My husband was also there. He also just kept quiet, did not say anything, although he knew the whole situation. That made me angry also, because maybe he felt he didn't want to offend the other person, whatever the reason. But that day I was so badly hurt and so angry with them that when I came back home, Guru Purnima was a few days away from that day, and I just declared coming home that I am going to Puttaparthi for Guru Purnima. Normally, if I have to go, I plan beforehand, talk to my family, only then we make a program. But that day, I don't know what came over me. I said, I'm going to Puttaparthi. And my husband knew I was quite angry also with them, so he also did not stop me. Then I just tried to find out. There was one Sevadal boy in our Samiti, Ugranath. He's now in Gurgaon. I think he was staying in Sarita Vihar at that time. I came to know that he was also going to Puttaparthi. So I just asked him if he could book my ticket also in the same train. Dharmavaram, हमने Karnataka में जाना था. He said, Auntie, I'll do it for you. So he booked my ticket, and since he was going from the same colony, it was no problem. He picked me up from my residence, मुझे साथ लेकर गया. Throughout the journey, हमारी bogies different थी, but he kept on coming. थोड़े stations के बाद to see that I was okay, there was no problem. And I went to Puttaparthi, attended the Guru Purnima festival, stayed there for 2-3 days, जो हमारा plan था. And then I came back, and after having darshan of Swami, वहाँ के सारे functions को attend करने के बाद, I was very happy and peaceful within now, very satisfied. जो भी गुस्सा था, whatever I had carried with me, that had all gone. There was nothing. I came back, spent 3 days there, and when I came back, I was very much at peace with myself, and I had even forgiven the person who had offended me. But when I came back, this question was just going on in my mind. Swami, you called me in such a way as if you were pulling me there. मेरा कोई program नहीं था. Assert कर लिया मैंने कि मैंने जाना है. Nobody stopped me as if he wanted me to come there. But how come, Swami, when I was there for these 2-3 days, you never even looked at me? You never talked to me, never came near me. Why did you call me there? I was just trying to understand. बार बार मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था. And I have seen when we have any query like that, हमारे मन में कोई बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कुछ जानने की, and we want to know. Then this thought came from within, as if Swami was telling me, when you are sad, when you are in agony, where do you want to go? You want to go to your mother's place, na? That is the place where you get the maximum solace and comfort. And then you were in such a state of mind that I had to call you there. I may not have spoken to you, but aren't you at peace with yourself now? Aren't you a very happier person than when you left Delhi? I thought that was the right thing. Yes, was at peace. I had forgotten everything. Then I thought, what if Swami did not come near me or did not talk to me? I saw Swami Guru Purnima के इतने पावन पर्व पर जाकर कितना सौभाग्य था कि मैंने स्वामी के इतने बढ़िया दर्शन लिए. I was a part of all the functions that were happening. I could attend everything, and I was really happy with them. उसके बाद मैंने एक incident पढ़ा about a student whose father was very sick, and he mentioned to Swami many a times that my father is not well. Swami told him, Puttaparthi lekar aao, call him to Puttaparthi. That boy thought कि my father will not be able to sit in the darshan lines for long also. Swami said, just call him here. तो उसने अपने parents को लिखा, and when the parents came,
They stayed there for 6 days. वहां दूर बेंच पर उनको बैठने को जगह मिलती थी because he could not sit down. Swami never went in that direction, never spoke to him, nothing. And this boy kept on reminding Swami, my parents are here, my parents here. But Swami did not pay any attention. And the day they left, जब उनको जाना था, उसके बाद स्वामी कहते हैं, where are your parents? And he says, Swami, they've left today morning only. But that boy was wondering why Swami did not call them when they were here. And when the parents reached home, he came to know that the father was fully cured, no problem at all. This reinforced my belief that Swami had called me there to make me happy within. वो जो माँ के पास जाकर आपको आनंद मिलता है ना, और ये दूसरा इंसिडेंस पढ़वाकर स्वामी ने रीइंफोर्स कर दिया मेरा बिलीफ दैट स्वामी हैड अ पर्पस इन कॉलिंग मी देयर, एंड द पर्पस वाज सॉल्व्ड इवन दो ही डिड नॉट टॉक टू मी. So this is how you get the answers within when आपका sincerity से आप भगवान से कुछ जानना चाहते हो. I will another occasion when I could get the answer within my own, कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज से ही आपको पता चल जाता है. Second time आप when we used to go to Prashanti Seva, you all know first when the Prashanti Nilayam station was not there, we used to ट्रेन से हम कर्नाटका से भी जिससे भी जाते थे धर्मावरम में हम लोग उतरते थे, वहां से आइदर टू टैक्सी और बसेस हम लोग पुट्टापर्थी पहुंचते थे, एंड द सेम वे वी वर कमिंग बैक आल्सो. Once it so happened कि after the सेवा 500-600 लोग जाने वाले थे. They all had to come to धर्मावरम to catch the train. बहुत बारिश भी हुई, बड़ी परेशानी हुई लोगों को. स्टेशन पर पहुंच गए, और स्टेशन पर पहुंचने के बाद some of you those who were there could be remembering it also. At the last moment it was announced that the train का platform change हो गया. Karnataka was supposed to come to platform number 1, but वो platform number 2 पे आ रही है, and some other train had stopped there. इतना ज्यादा लोग परेशान हुए, पैनिक हो गया कि सामान लेकर हाउ विल बी क्रॉस ओवर, टाइम भी इतना नहीं है स्टेज से ऊपर जाकर उतरने का सामान लेकर. एंड द ट्रेन केम अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड इट वाज स्टेशन देयर नाउ. सब लोगों ने अपना सामान उठाया, ट्रैक्स को क्रॉस कर करके बच्चों के साथ, लेडीज के साथ, दे क्रॉस्ड ओवर द ट्रैक्स एंड समहाउ दे बोर्डेड द ट्रेन ऑन द अदर साइड. वहां पर देयर वर सम एल्डरली पीपल, देयर वर सम लेडीज. एल्डरली पीपल को मैंने देखा सेवा दल के लोग कंधों पर उठाकर भी ले जा रहे थे, एंड द लेडीज वर अलोन देयर. जेंट्स नहीं थे, दे वर सो पैनिकी, बट द सेवा दल पीपल हेल्प देम. घंटा तो बहुत केओस रहा, और उसके बाद भी जो बोगी सामने आई सबने अपना सामान उसमें डंप किया, एंड दे बोर्डेड द ट्रेन. Myself and my husband, we were also there. We also took our luggage, crossed over the वहाँ ट्रैक्स जो थे, रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करके गए, एंड हमको लगा कि आगे तक जाएंगे तो ट्रेन चलना पड़े, तो लास्ट बोगी जो हमारे सामने आई हम उसी में चढ़ गए. एंड आफ्टर एंटरिंग द बोगी वी अंडरस्टूड दैट इट वाज अ जनरल कंपार्टमेंट, और जनरल कंपार्टमेंट इज नॉट इंटरकनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द ट्रेन. एंड इट वाज सो स्टफी, ना सामान रखने की जगह, ना खड़ा होने की जगह. वी थॉट अगर ट्रेन चल पड़ी, नेक्स्ट मेन स्टेशन विल बी गुंटकल ओनली, एंड वी विल नॉट गेट एनी टाइम कि अपना ये हम शिफ्ट कर सकें. तब तक हम यहाँ पर कैसे समय बिताएंगे. एट maybe there were only few minutes left. My husband said let's get down and get into the other compartment. ऐसे नहीं जा पाएंगे. Hurriedly हमने अपना सामान उतारा. We got down, took the luggage to the next compartment जो एकदम साथ में था, which was interconnected with the whole train, because then you can reach your own reserved place. वहां पर जब हम चढ़ गए, जस्ट सामान रखने बाद जैसे हम चढ़े, द ट्रेन स्टार्टेड, एंड इट वाज सच अ रिलीफ. एंड हमें घंटा लगा सेटल होने में, एंड बाय धीरे धीरे अपना सामान ले जाकर अपना रिजर्व जिस बोगी में हमारा सीट थी, वी रीच देयर एंड सेटल डाउन देयर. एंड मजे की बात यह है कि नो डेवोटी वाज लेफ्ट बिहाइंड. किसी का लगेज भी पीछे नहीं रहा. एवरीबडी कुड सेटल. 2 घंटे परेशानी तो बहुत ज्यादा हुई, बट सब बहुत ज्यादा लोग तंग हुए, पैनिक में आए, घबराए, बट एवरीबडी कुड बोर्ड द ट्रेन बिल्कुल किसी खतरे के बिना, किसी हानि के बिना दे कुड रीच. और उसके बाद देन आई वाज वंडरिंग, स्वामी आपको पता था आपके इतने सारे डेवोटीज आ रहे हैं, हमें नहीं पता, बट यू आर omniscient, you know everything. How did you let this happen? Did you not know कि इतने वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, कितनी उनको परेशानी होगी? How did you let this happen? When I was just contemplating on this, मेरे मन में यही चल रहा था. Then again Swami gave me a thought which I was fully satisfied with. Swami just gave me from अंदर से ही आंसर आया. तूने इन सबकी 2 घंटे की परेशानी देखी, कष्ट देखा, बहुत सबको तकलीफ हुई, पर कोई किसी को हानि नहीं होने दी मैंने.
तुम्हें पता है ये 2 घंटे की परेशानी में मैंने इनके कितने जन्मों के कर्मों को काट दिया? You don't know that. Then I thought, yes, Swami does not do anything without a purpose. Why did I doubt it at all? पर मेरे मन में ये विचार देना भी स्वामी की कृपा थी. Now I could understand what was behind all this. Yes, Swami can do all this. I have read so many instances, किसी के अनुभव सुने हैं कि जो कष्ट उनको 4 साल में 6 साल में सहना था, भगवान 6 घंटे में कटवा देते हैं अपनी कृपा से. This has been happening. किसी को, there was a student who wanted to पेनेंस करके काली माँ के दर्शन चाहता था. उसने सोचा था कितने भी वर्षों पेनेंस करना पड़े, I will do it. तो स्वामी ने एक बार इंटरव्यू रूम में बुलाकर उसको बिठाया, और उसको बिठाने के बाद उन्होंने उसको बोला कि उसको बोला कि चलो तुम. उसको आंखें बंद की और उसको लगा दैट ही इज गोइंग ऑन वॉकिंग. जंगल का एरिया, कितने मीलों चल गया. और उसको चलने के बाद, उसके बाद जब स्वामी ने उसको होश में आया तो स्वामी ने कहा, ये जो तुमने इतनी यात्रा की है ना, जो तुम्हें था कि तुम्हें तप करना है, ये तुम्हारी 3 वर्षों की यात्रा मैंने इस आधे घंटे में पूरी करा दी. एंड ही हैड द दर्शन ऑफ मदर काली दैट ही वांटेड. सो स्वामी के लिए ही इज द कालातीताय नमः, काल कालाय नमः. स्पेस और काल उनके अपने कंट्रोल में. ही कैन डू एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट. एंड व्हेन आई गॉट दिस आंसर विद हिम कि हाँ, मैंने इनके कई जन्मों के कर्म काट दिए, दे आर फ्री फ्रॉम दैट नाउ, आई वाज रियली सैटिस्फाइड विद देम. सच इंस्टेंसेस आपका फेथ बढ़ता है और अंदर की आवाज पर अधिक विश्वास होने लगता है. In 1999, when Swami had come to inaugurate the Sai International Center, at that time he was supposed to visit many devotees' houses. कईयों के घर उन्होंने जाना था. But it so happened कि एक फैमिली ने पूरी तैयारी की हुई थी. If I am not mistaken, it was Mr. Singh and GK1. स्वामी ने बोला था वो आएंगे. स्वामी did not go. Whatever happened, whatever the reason, I don't know. स्वामी जब नहीं गए, सारी तैयारी हुई थी. They had invited their friends. The devotees were there. Neighbors were there. After all this, when they did not go, everybody was so heartbroken. बहुत से लोग रोए इस बात के लिए. दुख हुआ उन्हें. होना भी था. That was natural. And when after that, we had a study circle, and one lady asked me, she said, why did such a thing happen? Swami ने promise किया था, why did it not go? और इतने लोगों को उन्होंने रुलाया, इतने लोग दुखी हुए, how can he do this? स्वामी ने ऐसा कैसे कर दिया? I could answer her because I had gone through a similar situation जब मैं भी बहुत रोई थी. तो मैंने उनको एकदम से उत्तर दिया. I said, आपने ये तो देखा कि लोग रोए, दुखी हुए, which was natural. पर आपने कभी ये सोचा कि स्वामी के लिए रोने में भी कितना आनंद है? हम लोग कोशिश भी कर लें तो भगवान के लिए एक आंसू हमारी आंखों से नहीं निकलता. कोई हमें ब्लेम कर दे, हमारे पर दोष लगा दे, when we are justifying ourselves, कोई गुस्सा कर दे, अपमानित कर दे, फट हमारे आंसू निकल आते हैं. बट भगवान के लिए आंसू कोशिश करने से भी नहीं निकलते, जब तक कि आपका प्रेम अंदर से, आपकी तड़प इतनी ना बढ़ जाए कि सारे बांध तोड़कर वो आंसुओं के रूप में निकल पड़े. और उस रोने में जो आनंद है वो अनोखा ही है. I could give this answer because I had experienced it. Once many years back, the Bal Vikas children had taken a play for Baba's birthday. पुट्टपट्टी में लेकर गए थे. I think the play was Bullesha. और बच्चों को आप जानते हैं कि प्रिपरेशन के लिए how much effort you have to put into that. उनको प्रैक्टिस के लिए ले जाना, उनके कॉस्ट्यूम्स अरेंज करना, इतनी उनकी प्रैक्टिसेस करवाना, डायलेक्ट डिलीवरी भी ठीक हो, सब कुछ हो. एंड द टीचर्स, गुरुज हैव टू टेक अ लॉट ऑफ पेन फॉर दैट. तो मेरा ऐसा था कि somehow with my own limitations, I could not take the children, I could not participate so much in the hard work that goes into it, but I am somehow or the other associated with Bal Vikas also. So when we went there, we were many gurus. तो वहां पर स्वामी ने, जब हम गए तो स्वामी बाद में ब्लेस करते हैं गुरुज को. व्हेन द फंक्शन इज ओवर, बहुत अच्छा वो प्ले गया. तो मिसेस शौरी ने निमि दीदी को बोला, दिल्ली से बहुत भीड़ आ जाती है हमेशा, प्लीज डोंट ब्रिंग टू मेनी न्यूज फॉर गुरुज फॉर दिस ब्लेसिंग नाउ. एंड में लिमिटेड नंबर ही लाना. एंड मे बी शी स्पेसिफाइड द नंबर ऑल्सो. It was very difficult for Nimi Didi कि अब मैं किसको छोड़ूं, किसको ले जाऊं, इतने गुरु साथ आए हुए थे. But then she decided those who had put in the maximum work, it was only right to take them only. So उन्होंने, she had to drop out many gurus जो कि इतना involved नहीं थे. And I was one amongst them who were dropped. मन में आशा तो होती है कि भगवान पास आएंगे, पाद नमस्कार मिलेगा, इतना सानिध्य मिलेगा. We all crave for that. But when this happened,
तो मेरे को आई डोंट नो, आई न्यू आई हैड नो शिकायत with निमी दीदी कि उन्होंने मेरे को क्यों छोड़ दिया। आई न्यू शी कुड नॉट हैव डन एनीथिंग एल्स। उन्होंने जो मुझे छोड़ दिया तो आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, मैं इतना रोई, मैं अपने कमरे में जाकर रोई। एंड मेरे को कभी कभी एम्बैरेसमेंट होती थी कि व्हेन आई केम आउट ऑफ द रूम एंड समबडी सेड हाउ आर यू लेफ्ट आउट, आई वुड स्टार्ट क्राइंग अगेन। फिर मेरे को रोना आ जाता था, मुझे लगता था लोग कहेंगे पागल है, बच्ची है जैसे रो रही है। बट आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई क्राइड सो मच इन दैट विजिट। उसके बाद बहुत समय लगा, फिर देन आई रियलाइज उस रोने में भी बहुत सुख था, आनंद। भगवान के लिए आंसू नहीं निकलते। तो ये बातें जब हम सोचते हैं तो मुझे लगा दैट आई हैड गॉन थ्रू दिस, आई हैड एक्सपीरियंस दैट ब्लिस इन शेडिंग टीयर्स आल्सो फॉर स्वामी। नहीं होता, मैं कोशिश करके भी नहीं रो पाती, पर उस समय उन्होंने इतना भावातिरेक कर दिया हृदय में, इतना ज्यादा है वो फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ सो लव फॉर स्वामी, क्रेविंग फॉर स्वामी, कि मेरा रोना रुकता ही नहीं था। सो आई कुड ब्यूटिफुली आंसर दिस एंड दैट पर्सन वाज आल्सो सैटिस्फाइड व्हेन आई सेड भगवान जब अपने लिए रुलाता है उसमें भी उसका कोई तात्पर्य होता है। फ्रॉम दीज शॉर्ट एक्सपीरियंसेस, आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लॉन्ग, इससे हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है कि एनीथिंग दैट हैपेंस टू अस, nothing happens without the divine will. Let us learn to accept that. आपने कभी कभी देखा है कि हमने कहीं जाना होता है और जाते जाते हम रुक जाते हैं, हम कुछ बोलते बोलते रुक जाते हैं, हम करते करते रुक जाते हैं। There are many times we want to do something, we can't do it. At that time हमें बुरा लगता है, बट बाद में हमें पता चलता है अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, it was only for our own good. That we come to realize later. So when anything of this sort happens, कि आप कुछ कर नहीं पाए जो आप करना चाहते थे, बोल नहीं पाए, never say I could not do that. Say my Swami did not let me do that because that was not right for me. Because we are not doing anything on our own. Everything that we are doing, we are prompted by Swami. We are just, कहते हैं ना, he is the producer, director of the play. हमें जो तो वो करवा लेते हैं. Never let that ego come that I am doing. Never blame yourself. अगर आप पूरा क्रेडिट भगवान तो को देंगे तो आप अपने आप को ब्लेम करने से भी बच जाएंगे. बट वी कैन नॉट बी हिपोक्राइट्स कि हम क्रेडिट तो खुद ले लें और ब्लेम भगवान को दे दें. व्हेन वी सरेंडर कंप्लीटली टू गॉड, there is your hand behind everything, that everything is happening because of the divine will. Once we understand that, then once that surrender and acceptance comes, then life becomes so smooth. आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में से भी निकल जाते हैं. जिस कष्ट में, जिस दुख में आपको इतनी पीड़ा पहुंचानी थी, वो सरलता से निकल जाता है. कर्मों का फल तो हम सब भुगतते हैं, वी ऑल हैव टू गो थ्रू दैट. बट स्वामी इतने, अगर आप सरेंडर्ड हैं, अगर आप में एक्सेप्टेंस है, अगर आपका विश्वास पक्का है, उसी परिस्थिति में से स्वामी बहुत आसानी से आपको निकाल देते हैं. कहते हैं ना, हमको स्वामी चोट तो देते हैं पर टूटने नहीं देते. जैसे कुम्हार जब एक मटका बनाता है, उसको शेप में लाने के लिए बाहर से उसकी पिटाई भी करता है, ठोकता भी है, पर अंदर से उसका हाथ उसको हमेशा दे के रखता है, क्योंकि उसको टूटने नहीं देता. इफ आवर सरेंडर, इफ आवर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, अगर हमारा ट्रस्ट भगवान में पूरा है, फेथ पूरा है, दिस इज हाउ ही रिफॉर्म्स अस. He makes us better human beings, better devotees. He takes us closer to himself. These are the tests that we have to go through. तो हर एक परिस्थिति में जरूरी नहीं है कि आपको भगवान फिजिकल फॉर्म में आकर उत्तर दे. अपने अंदर झांकिए, ट्राई टू इंक्वायर विद इन. अंतरात्मा की आवाज बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ आपको बता जाती है. आई थिंक दैट इज व्हाई स्वामी हैज सेड सो मेनी टाइम्स, आस्क फॉर द इनर व्यू, नॉट द इंटरव्यू. इनर व्यू हमारा जितना प्रबल होता जाएगा, हमारा स्वामी के साथ कांटेक्ट उतना ज्यादा दृढ़ होता जाएगा. विदाउट बीइंग इन फिजिकल प्रेजेंस, अब स्वामी हमारे के लिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट ही इज एवर विद अस. वो अंदर अंतर्मुखी होकर, अंतरात्मा की आवाज सुनकर, अंदर उनको अनुभव करना जब हम सीख जाएंगे, हमसे दूर कहाँ है स्वामी. इज ऑलवेज विद अस, आंसरिंग आवर क्वेरीज. हमारी कोई भी जिज्ञासा होती है उसको शांत करते हैं, पर उसके लिए आपका विश्वास और सरेंडर बहुत जरूरी है. थ्रू दीज इंस्टेंसेस आई लर्न कि, और उसके बाद मैंने कई किस्से पढ़े जिससे मुझे रीइंफोर्स भी हो जाता है कि हाँ, व्हाट आई थॉट वाज राइट, उसमें कुछ सोचने में गलत नहीं था. दिस इज व्हाट स्वामी वांटेड. ही हैज हिज ओन वेज ऑफ कन्विंसिंग अस, हमारे को समझाने का, हमारे को सीधे रास्ते पर लाने का. बट लेट अस नॉट फॉरगेट टू सी द डिवाइन हैंड इन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, गुड और बैड, व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मी. भगवान आपकी इच्छा से हो रहा है,
I have to thank you for the bad things also that come in my life as I thank you for the good things. अगर ये आ जाएगा तो आप देखिए स्वामी का प्यार आपको हमेशा मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल कठिनाई में भी आप उसमें से निकल जाएंगे, and you will feel his presence ever besides you. He is always with us. He loves us so much. जितना हम उनसे प्यार करते हैं उससे ज्यादा प्यार हमारे स्वामी हमसे करते हैं. Let us be assured about that. But only thing is, he wants purity of heart, surrender, trust, faith, unwavering faith. कहते हैं ना संशय आत्मा विनश्यति, कभी उस पर डाउट मत करिए. अगर आपने एक बार उसको अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया, nothing wrong can happen to you. So today I just wanted to share these few experiences because फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी हो, अंतरात्मा की आवाज में आप स्वामी से संपर्क स्थापित करके अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं. आई विल नॉट से मोर टुडे, बहुत लंबा नहीं करूंगी. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस अगेन. साईं राम.